Good evening, friends. Hope everyone had a good weekend and everyone is excited for trading tomorrow. Let me quickly get into the Bank Nifty analysis, friends. On behalf of Catalyst Trading Institute, I welcome you all to this analysis video. Now, if you see, right, Bank Nifty ने अपना पैटर्न जो है कंटिन्यू किया है लास्ट अप्रोक्सीमेटली राइट इफ यू सी 1 2 3 4 5 6 7 सेशंस के लिए राइट एक दिन ग्रीन दूसरे दिन रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड कल एज इन फ्राइडे को फिर से ग्रीन था राइट एंड अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल्स बड़ी बनती है लाल कैंडल्स भी जो बेरिश कैंडल्स भी रेजिस्टेंस के पास बड़ी ही बन रही है। अब इंटरेस्टिंगली हमारे लिए कौन से ट्रेड्स बनते हैं राइट। अगर आप बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अब रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। वाई रेजिस्टेंस बिकॉज ये ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है राइट। पर्सनली इफ नॉट अ डिप वी आर सीइंग सम कंसोलिडेशन in bank nifty right after it takes out the highs of the day, right, highs of the index, right. And many people have asked this question in terms of events, right, how do you trade, how do you plan your trades during events. ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. We had inflation data which was reported, right, manufacturing data which was reported, and there is Karnataka elections data also which was reported, right. Karnataka elections data, while it has not been in favor of the ruling party, when I say ruling party, right, both in the state as well as at the center, if you realize, right, फ्राइडे तक एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ चुके थे एंड एवरीवन न्यू दैट कांग्रेस मे फॉर्म गवर्नमेंट विथ सम सर्टेनिटी. हाउएवर द रिजल्ट्स हैव एक्चुअली शोन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी फॉर कांग्रेस, राइट, जो एक्सपेक्टेड नहीं था. इतनी बड़ी मेजोरिटी किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने अपने प्रेडिक्शंस में नहीं दिया था. सो इज दैट अ सरप्राइज फॉर द मार्केट? शायद यस, थोड़ा बहुत सरप्राइज है. हैज मार्केट डाइजेस्टेड दैट इंफॉर्मेशन? The impact of the whole news, right? Market had digested because everyone was expecting BJP will not form a government in Karnataka, right? If you look at inflation and the other data points, right? Inflation data looks under check. So whatever steps RBI is taking has kind of inflation data was reported lower than the expectation, which means they are fairly going in the right direction. However, having said that, the manufacturing data also came as a surprise because there is a dip there as well, right? So keeping these three things in mind, either we may take a pause, or if everyone is negative, right, if everyone is negative, market will surprise by going high, right. Now let's understand it through few other data points that we have. VIX, if you see, right, on a monthly basis is forming open low, right, and actually if you see, right, with this rally every day VIX is going up, right, with this rally every day VIX is going up, which means VIX has a support now at 12.49 and can go right up to 15, right, it can go right up to 15. Does it mean the bear phase starts? The answer is no, right? When you are trading near resistance, you have to be very careful in terms of how you are attempting your trades. Don't start getting into buying puts, especially this month, right? We'll observe market को एक crucial level है ना 42,800 का तोड़ने दो, उसके बाद हम समझेंगे कि पुट्स लेना भी है कि नहीं. अभी तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर चल रहा है एंड एक एग्जॉशन रैली नजर आ रही है. अगर आप देखेंगे डेली चार्ट्स को ना, एक एग्जॉशन रैली नजर आ रही है एंड मार्केट इसी तरह से एग्जॉशन होके कहीं 2 दिन कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स देगा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेगा अगेन टुवर्ड्स द लेवल्स एट विच इट इज ट्रेडिंग राइट नाउ एंड वहां से एक फॉल रिज्यूम करेगा. अभी मार्केट में सेलर्स नहीं है. व्हाई? बिकॉज इफ यू सी ऑल दिस क्रूशियल रेजिस्टेंस पॉइंट्स विच वर टेकन आउट, 43,550 and all are will now act as a support. So we have to wait and watch before we make any short side positions. Does it make sense, guys? Yeah, okay. I will proceed to the next segment, right, to look at intraday chart, right, and tell you guys what are the possibilities that I am seeing. So if you look at the intraday charts, right, and let me, sorry, delete this. There are certain levels that I have marked here, right? There are certain levels that I have marked here. Importantly, 43,950 to 44,050 is a psychological resistance, right? Also, last time when the selling came, you see this M pattern formation. This area, right, will now become a resistance, which is where I am saying, right, if you see market now, yesterday it started hitting the first line of defense
near the all time high. Now once it starts going further up, right, there are enough and more psychological resistance plus structure based resistance, right? स्ट्रक्चर के अराउंड मुझे काफी लोगों ने कहा कि स्वीप लिक्विडिटी वगैरह का आप कुछ बता सकते हैं क्या? आई विल ट्राई टू पुट वीडियोस। राइट नाउ मार्केट में ऐसा कोई कैंडल बन नहीं रहा है कि मैं आपको उसके माध्यम से समझा सकूं, बट आई विल ट्राई एंड सी इफ देयर इज सम डे व्हेन आई कैन कम लाइव एंड आई कैन टीच इट। या अब इंपॉर्टेंटली मार्केट में एक गैप अप होता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, एक शूटिंग स्टार या बेरिश एनगल्फिंग टाइप का कैंडल बनता है, तो वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक अ पुट, एंड दैट पुट कैन फेच यू around 43,950 to 44,050, right? It can come all the way down to 43,760 and 43,623. Any opening, right, which is gap up between 43,950 and 44,050, you get a good bearish candle, you will get a short. Short again with 10 to 20% of your regular quantity, right? Now, if you see any flat opening between 43,675 to 43,760, right, can consolidate first 10-15 minutes and then go towards 43,900, 44,000, right? Again, I'm saying flat opening to slight gap down will get bought into. Gap down कहाँ तक? 43,650 तक, राइट? ये दोनों के बीच में अगर कोई ओपनिंग होता है तो विल गेट बॉट इनटू। इंटरेस्टिंगली ये जो लाइन है ना 43,612 की, इसके नीचे ओपन होता है, एक डिप लेता है टुवर्ड्स 43,450 टू 500, वहां से अगर 43,600 पे आता है तो आप शॉर्ट करें। ये जो शार्प ट्रेंड लाइन है इसके लेवल्स मीट हो सकते हैं, इसके नीचे ये 43,180 तक भी आ सकता है। दिस विल बी अ गुड ट्रेड वेयर आई मे इंक्रीज माई क्वांटिटी ऑन द पुट साइड, राइट? सो मेरे लिए कल लॉन्ग की तरफ छोटा ट्रेड है। अगर गैप डाउन ओपन होता है टिल 43,650 680, तो मुझे बुलिश कैंडल मिलेगी तो मैं एक ट्रेड लूंगा 43,850 950 44,050 के लिए। बड़ा गैप अप होता है तो मुझे एक ट्रेड मिलेगा, बट क्वांटिटी कम हो जाएगी बिकॉज क्लोजिंग कैंडल भी एक सपोर्ट देगी गैप अप अगर होता है तो। एंड अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे 43,600 के आसपास ऐड करने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसे समझाता हूँ ऑप्शन चेन के माध्यम से। दोस्तों ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे, कॉल राइटर्स में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर आप देखेंगे 43 कॉल राइटर्स ने कहीं पे भी कोई बड़ी पोजीशंस ऐड नहीं की है। इनफैक्ट पुट राइटर ने अपनी पोजीशन 43,500 के आसपास सॉलिडिफाई की है। 43,500 120 150 रुपी का वीवैप लेवल था, अराउंड 43,650 टू 680, राइट? मुझे एक सपोर्ट इसी के लिए नजर आता है। अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर कॉल राइटर 43,600 ने कंप्लीटली अपनी पोजीशंस एग्जिट की है, तो कल अगर 650 से 680 का डिप मिलता है तो आपको ऑप्शन चेन के द्वारा भी अगर आप देखेंगे तो आपको लॉन्ग ही मिलेगा। चलते हैं कंपोनेंट्स पे दोस्तों। कंपोनेंट्स एक अगेन बैंक निफ्टी नियर ऑल टाइम हाइज, राइट? विच मीन्स इफ आई लुक एट HDFC बैंक, HDFC बैंक शुड ऑल्सो गिव मी सम क्लू। अगर आप देखेंगे HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। बैंक निफ्टी में दिसंबर में ऑल टाइम हाइज बने थे, उसके बाद HDFC ऊपर गया है, बट ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे HDFC अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लिक्विडिटी बना रहा है मुझे एक शॉर्ट के लिए, राइट? मैं क्यों शॉर्ट कह रहा हूँ, एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है HDFC में। सॉरी, लेट मी जस्ट टेक दिस एंड अगेन रीड्रॉ इट। ये पॉइंट पे ज्यादा कनेक्ट्स नहीं मिल रहे मुझे। अगर आप ये देखेंगे ना, यहाँ पे मुझे अच्छे कनेक्ट्स मिल रहे हैं, 3 पॉइंट मेरे कनेक्ट हो रहे हैं, राइट? सो अब ये सप्लाई सप्लाई क्रूशियल जोन में बना है, गैप पे बना है, राइट? ये सप्लाई क्रूशियल गैप पे बना है, इसके नीचे एंड ये न्यूज वाला गैप है, राइट? ये न्यूज वाला गैप है जहाँ पे MSCI में 50% कंसिडर वेटेज होने का न्यूज आया था, तो HDFC में एक बड़ा गैप डाउन आया था। ये उस न्यूज वाला गैप है। इधर एक कल भी कल मतलब 11 मई को भी इसने एक सप्लाई बनाया। अभी ये कैंडल इस जब तक ये हाई को नहीं निकालती मेरे लिए लॉन्ग नहीं बनता HDFC में। रादर बिलो 1660 आई एम ट्रेडिंग इट फॉर द टारगेट्स ऑफ 1648 एंड देन फॉर 1634, राइट? सो HDFC पर्सनली मेरे लिए बेरिश है फॉर दिस रीजन, right? If I go to ICICI, if I go to ICICI Bank, again ICICI Bank also, right, looks on a daily chart trend line liquidity near the resistance, 50% of this candle not taken out. Personally, if it starts trading below 935, it becomes bearish for these targets of 922 to 908, right? ये टारगेट्स ICICI में आ सकते हैं। तो अगर आप डेली चार्ट दोनों के देखें ना, दोनों में नियर इट्स रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है इज नॉट फॉर्मिंग गुड। समवेयर आई फील द बायर्स ऑन दीज टू साइड, राइट, on ICICI and HDFC are getting ready to be trapped on the upside. कल अगर ऑल टाइम हाई निकालता है तो बहुत ही अच्छा है,
बट अब मेरे लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करें, जब तक इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं देते मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कंपोनेंट्स को देख के लॉन्ग जाने में, राइट। चलते हैं एक्सिस बैंक पर। ऑफ द थ्री, as in of ICICI, if you look at ICICI and HDFC, right, those charts don't inspire confidence. एक्सिस में मैंने लाइव एनालिसिस में कहा था अबाउ 808, इनफैक्ट हमने यहाँ से इसको लॉन्ग दिया था जिस दिन इसे एक लो बनाया था ना, ये मैंने कहा था इन्वर्टेड हैमर ट्रैप कैंडल की पैटर्न बनाएगा। इस पैटर्न का टारगेट है नियरली 920। एक्चुअली अगर इसका आप देखेंगे भी ना, ये इस चीज का ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका था। ये इस पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे, ये 874 से ये एक असेंडिंग ट्रायंगल था, ये एक असेंडिंग ट्रायंगल था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल था 874 से 820, राइट। इसका टारगेट नियरली 50 पॉइंट्स था, ये दे चुका है। इसका टारगेट 925 से 960 तक जा सकता है। पर्सनली मुझे एक्सिस बैंक में कोई शॉर्ट नजर नहीं आ रहा है, मैं तो इनफैक्ट इसे डिप पे बाय करना पसंद करूंगा। मुझे आइडियली 898 पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो एक्सिस बैंक तो मेरे लिए लॉन्ग है। एंड हमने इसको इस लेवल के ऊपर, राइट, 808 हमने यहीं से लॉन्ग दिया था इंट्राडे में। बट 885 के ऊपर हमने लॉन्ग इसे दिया था पोजिशनली, जब हमने कहा था कि ये अपने अ, बड़े टारगेट्स दे सकता है एक्सिस बैंक। चलते हैं कोटक पे। अगेन इंटरेस्टिंग फॉर मी कोटक, बिकॉज MSCI रीबैलेंसिंग में जितना हमने वॉल्यूम एक्सपेक्ट किया था उतना आया नहीं है, शायद मई एंड तक आएगा। बट कोटक मेरे लिए न्यूट्रल है। कोटक अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे एग्जॉशन भी आ रहा है इसमें, जब तक ये 1974 काटता नहीं है इसके 2000 के लेवल्स खुलते नहीं है। कल इंटरेस्टिंग होगा इसकी प्राइस एक्शन देखेंगे। एक्चुअली ये अपने ट्रेंड लाइन, एक बड़ी शार्प ट्रेंड लाइन चल रही है नीचे से, ये अपने ट्रेंड लाइन को होल्ड करके चल रहा है। कोटक मेरे लिए न्यूट्रल है, एक्सिस बुलिश है, HDFC ICICI मेरे लिए नेगेटिव है। चलते हैं स्टेट बैंक पे। स्टेट बैंक अगेन इफ यू सी, राइट, स्टेट बैंक लुक्स गुड फॉर अ हायर टारगेट ऑफ रफली, एक्चुअली इसने रेजिस्टेंस लिया है बट आई स्टिल वांट टू सी इफ स्टेट बैंक अबव 580, राइट, कैन क्लोज टुमारो। इफ इट क्लोजेस, राइट, इट is open for the targets of 600, right? Why do I say that? अगर आप स्टेट बैंक में एक ट्रेंड लाइन लगा के देखोगे ना, स्टेट बैंक ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, राइट, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था एंड इसके अराउंड इसने एक रीटेस्ट लिया था और ऊपर गया था। पैटर्न का टारगेट अगर आप देखें, पैटर्न में पैटर्न का टारगेट बड़ा है अभी भी, राइट। रीटेस्ट के बाद हमें लग रहा है ये ऑल टाइम हाइस की तरफ जाएगा। अगेन शायद इसका रिजल्ट भी पेंडिंग है, SBI का रिजल्ट भी पेंडिंग है। पर्सनली मुझे इसमें कोई बेरिशनेस नहीं नजर आती, बट कैनरा बैंक का न्यूज था, अब वापस समझना है कि उससे PSU बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। 571 के पास, 571 से 568 के बीच में सपोर्ट लेता है तो आई वुड लाइक टू गो बुलिश। बट मैं पर्सनली प्री ओपन सेशन मॉनिटर करना चाहूंगा फॉर SBI, राइट, स्पेसिफिकली SBI, बिकॉज SBI में मुझे लग रहा है कि एक बुलिश यहाँ पे कंसोलिडेट जो कर रहा है अराउंड द प्रायर रेजिस्टेंस लेवल, राइट। ये प्रायर रेजिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया। नेक्स्ट टाइम ये सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया था, फिर रेजिस्टेंस लेने लगा, अब सपोर्ट बन गया। तो अराउंड 565 टू 568 यहाँ पे बुलिशनेस फिर से आ सकती है। तो ये मेरे लिए पर्सनली शॉर्ट नहीं है। इंडस इंड इज अ स्टॉक, राइट, विच इज ट्रेडिंग नियर इट्स रेजिस्टेंस। अगर आप देखेंगे जहां से बड़ा पिवट मूव आया था नीचे की तरफ, मुझे पर्सनली ये एक बार बिटवीन 1080 टू 1000 नजर आता है। इसमें हमारे बाइंग ट्रिगर नहीं हुए थे। अगर देखेंगे लास्ट 5 डेज में अच्छी बाइंग आई थी, शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सरप्राइजिंग था ये स्टॉक का इतना ऊपर जाना, हमें लगा था ये शायद नीचे आएगा टूवर्ड्स 1000 1020, राइट। जब ये मूव हुआ था तभी बड़ा कैंडल था, उसमें एक एक्चुअली बुलिश हरामी टाइप का एक पैटर्न बना है। बुलिश हरामी भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बुलिश क्लोजेस्ट पैटर्न इज दैट। एंड वहां से इसने एक अच्छा अप मूव लिया है, बट अगेन इट्स ट्रेडिंग नियर इट्स रेजिस्टेंस। आई पर्सनली आई एम सीइंग consolidation to fall. So if you see, right, Bank Nifty के components are giving mixed signals. HDFC, ICICI, Kotak, right? Kotak is neutral, Axis is bullish, SBI and IndusInd is on hold, right? HDFC, ICICI के साथ अगर SBI आ गया 568 के नीचे तो आपको अच्छा मूव नीचे मिलेगा, राइट। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी के, वी विल गो टूवर्ड्स दी ऑप्शन चार्ट टू सी इफ देयर इज समथिंग, राइट। सो 18700 सी नीचे से अगर आप देखेंगे, मुझे अगर फर्स्ट 43700 सी, मुझे अगर यहाँ पे 283 से 268 के बीच में
बिटवीन 9:15 एंड 9:30 कंसोलिडेशन दिखता है, स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिलती है, तो मैं इसे लॉन्ग करना पसंद करूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 367। नीचे से अगर आप देखेंगे अच्छी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये ट्रेड अगर मॉर्निंग 9:30 में अगर ऊपर ही चलता है तो वेट करें, अराउंड 11-11:30 आफ्टरनून सेटअप में जरूर देगा आपको, राइट। Again, there is nothing in the market. Don't get lured by the news and everything. There is nothing in the market which is suggesting a sell. In fact, ये सारे levels जो resistance थे ऑप्शन चार्ट ने उसको ब्रेक किया है। अगर नीचे आएगा तो आपको लॉन्ग ही मिलेगा। बेस्ट लॉन्ग आपको मॉर्निंग में 240 के पास भी मिल सकता है, बिटवीन 9:20 एंड 9:30। एंड वहां पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 20 से 18 पॉइंट का होगा। तो ये एक जोन है जो बेस्ट बाय जोन है, बट आपको स्ट्रेट एंटर नहीं करना है इस जोन में। इस जोन में एंट्री के लिए आपको एक बुलिश कैंडल का वेट करना है फ्रेंड्स। ये अगर पैटर्न बनता है तो हमारा जो माइल्ड गैप डाउन वाला जो हमारा थीसिस है, जो मैंने अभी वीडियो के शुरू में समझाया था, राइट, कि माइल्ड गैप डाउन अगर है तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। वहां पे ये अगर देखोगे तो डेल्टा एंड थीटा दोनों डीके के कारण ये कहीं पे आके एक पॉज लेके ऊपर ही जाएगा, राइट। चलते हैं 44,000 पीई पे। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल स्ट्राइक है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी बनाई है। अब पर्सनली आप देखेंगे ये जो पुट राइटर्स थे जिन्होंने अच्छी राइटिंग की थी, फिर बाइंग आई, राइट, यानी ये पुट राइटिंग जो हुई है शायद कवर हो गई है। कल अगर ये 379, यानी मैं जो कह रहा हूँ कि गैप अप अगर खुलता है टुवर्ड्स 43,950 टू 44,050, राइट, तो अगर इस लेवल पे कंसोलिडेट करके ये पुट अगर ब्रेकआउट देता है तो बाय 9:30, राइट, मुझे यहाँ पे पुट में एक ठीक ठाक ट्रेड नजर आता है। कंसोलिडेट करके अगर इस ट्रैप कैंडल के ऊपर खुल के अगर ऊपर जाता है तो मुझे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। पर्सनली पुट में टारगेट्स बड़े होंगे, मूवमेंट आएगा तो पुट साइड में बड़ा आएगा। अगर आप देखेंगे बड़ा गैप डाउन भी होगा, अराउंड 510 अगर खुलता है, फिर रीटेस्ट करता है ये 440 को, यहाँ से टारगेट्स बड़े खुल जाएंगे आपके लिए, मिनिमम 100 टू 120 पॉइंट्स के। क्वांटिटी पुट साइड में कम रखें, कॉल साइड मेरे को चेज नहीं करना, फ्लैट एंड स्मॉल गैप अप आई विल चेज फॉर द टारगेट्स ऑन द स्पॉट चार्ट ऑफ 43,950 एंड 44,050। Friends, this is it with respect to daily, weekly analysis of Bank Nifty. A gratitude message for everyone, friends. We as a group, when we started Catalyst Trading Institute, we were unsure. Subscribers हमने initial जब add किए थे तो हम single digit में थे. We are today more than 400, right? On Telegram, and every day we are adding 10 to 15 members. This has been only possible because of you guys, right? Because of your word of mouth. You guys have a trust. In fact, अगर आप हमारे views भी देखेंगे with respect to active members is fairly high on Telegram calls that we are posting as well as YouTube channel. We are just 2 to 3 weeks old, right? So there would be some glitches which are happening and we'll try and rectify it. But over a period of time, we are creating a good infrastructure for you guys. Our analysis videos are coming daily. Our setup videos we have been sharing. On setup, the calls that we are taking, we are explaining it through case studies, right? Members are making good profits. They are sharing extremely good screenshots with us. So we are very happy as a founding team, right? The three of us. Now, for people who are watching the video, right? Do continue watching our videos. If you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel, give comments, like the videos, and I would recommend you guys to share it as much, because in stock market, right, there are many channels which are coming up and coming up with videos, short videos. They don't tend to pass knowledge, right? We are here to make independent traders and not be a tip provider. So अगर आप हमारा endeavor देखेंगे, we are always talking about a setup. We are sticking to a setup. We are explaining things logically, right? जहाँ से लोग independently trade कर सकते हैं। सो हम सिर्फ कॉल देके छोड़ नहीं देते, हम एक एक सेटअप को समझाते हैं इन वीडियोस के थ्रू भी, और थ्रू आउट द डे हम एक एक सेटअप चार्ट वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज शेयर इट, इट विल बेनिफिट योर फ्रेंड्स, family members, right? With this, I would like to end the analysis video. We'll meet you guys again tomorrow in the live market with a live analysis video, hopefully with a good call or put that we can take in the live market. Thank you so much for your support. And with this, I will end the video. Thanks.